Welcome to my channel Education Rajesh Malla. Welcome to my channel Education Rajesh Malla. বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া ব্যাকৰণ শিকাম। অসমীয়া ব্যাকৰণ শিকাম। ব্যাকৰণৰ ভিতৰত যেনে বৰ্ণ বা আখৰ, শব্দ, বাক্য, কাক বোলে আৰু ই কেনেকৈ উচ্চাৰণ হয়, লগতে ইহঁতৰ উদাহৰণো দেখুৱাম। হিন্দী আৰু অসমীয়াত দুয়োটা ভাষাতেই শিকিবলৈ পাব। হিন্দী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতেই শিকিবলৈ পাব। বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক অসমীয়া ব্যাকৰণ শিকাম। অসমীয়া ব্যাকৰণ মানে অসমীয়া ব্যাকৰণৰ ভিতৰত যিটো বৰ্ণ বা আখৰ, শব্দ, বাক্য, কাক বোলে আৰু ই কেনেকৈ উচ্চাৰণ হয়, লগতে ইহঁতৰ উদাহৰণো দেখুৱাম। হিন্দী আৰু অসমীয়া দুয়োটা ভাষাতেই শিকিবলৈ পাব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, অসমীয়া আৰু হিন্দী ভাষা দুয়োটাতে মই অসমীয়া ব্যাকৰণ শিকাম। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को असमिया व्याकरण सिखाने जा रहा हूँ। असमिया व्याकरण, जैसे असमिया व्याकरण इस साथ साथ हिंदी भी सिखाऊंगा। तो असमिया व्याकरण जैसे वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य किसे कहते हैं और इनके उदाहरण और उच्चारण भी, अर्थात उदाहरण और उच्चारण कैसे होता है, हिंदी और असमिया दोनों भाषाओं में सीख सकोगे। ठीक है दोस्तों, आज मैं आप लोगों को असमिया व्याकरण सिखाने जा रहा हूँ। साथ साथ हिंदी भी है। असमिया व्याकरण के साथ साथ हिंदी भी सीख पाओगे। इस व्याकरण में जैसे वर्ण, अक्षर, शब्द, वाक्य किसे कहते हैं और इनके उदाहरण और उच्चारण कैसे होते हैं, हिंदी और असमिया दोनों भाषाओं में सीख सकोगे। বন্ধুসকল, বৰ্ণ, শব্দ আৰু বাক্য শিকাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব ভাষা, অৰ্থাৎ ভাষা কাক বোলে। বৰ্ণ, শব্দ, বাক্য আমি ভাষাৰ কাৰণে শিকোঁ। তাৰ কাৰণে ভাষা কাক বোলে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। এইবাৰ ভাষা কাক বোলে? এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাকে ব্যাকৰণত ভাষা বোলা হয়। বন্ধুসকল, বৰ্ণ, শব্দ আৰু বাক্য শিকাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব ভাষা, অৰ্থাৎ ভাষা কাক বোলে। বৰ্ণ, শব্দ, বাক্য আমি ভাষাৰ কাৰণে শিকোঁ, অৰ্থাৎ এইবোৰ শিকিহে আমি ভাষা লিখিব পাৰোঁ, ক'ব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে এইবোৰ শিকা দৰকাৰ। তাৰ কাৰণে ভাষা কাক বোলে জনাটো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। ভাষা কাক বোলে? এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিক নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰাকে ব্যাকৰণত ভাষা বোলা হয়। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তিয়ে আন এজন ব্যক্তিৰ সন্মুখত নিজৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰে, সেই ভাৱ প্ৰকাশ কৰাটোকেই ভাষা बोला है। दोस्तों, वर्ण, शब्द, वाक्य सीखने से पहले हमें भाषा के बारे में, अर्थात भाषा किसे कहते हैं,
जानना जरूरी है, क्योंकि हम वर्ण, शब्द, वाक्य, भाषा के लिए ही सीखते हैं। ठीक है, भाषा बोलने के लिए या लिखने के लिए हम ये सब सीखते हैं, तो इसलिए भाषा ज़रूरी है होता है। तो भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? एक व्यक्ति अपने मन का भाव दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकाश करने को ही व्याकरण में भाषा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक व्यक्ति अपने मन का भाव दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकाश करने को ही व्याकरण में भाषा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, वर्ण, शब्द, वाक्य सीखने से पहले हमें भाषा के बारे में, अर्थात भाषा किसे कहते हैं, जानना जरूरी है, क्योंकि हम वर्ण, शब्द, वाक्य भाषा के लिए ही तो सीखते हैं, इसीलिए भाषा बहुत जरूरी है। तो भाषा किसे कहते हैं दोस्तों? एक व्यक्ति अपने मन का भाव दूसरे व्यक्ति के सामने प्रकाश करने को ही व्याकरण में भाषा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अपने मन का बात या मन का भाव जो होता है हम दूसरे के सामने प्रकाश करते हैं, उसी प्रकाश करने को ही भाषा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, বর্ণ বা আখর। এবার বর্ণ বা আখর কাক বলে? বর্ণ বা আখর বুলিলে আমি কি বুঝো? মানুহে মনৰ ভাৱ লিখিত হিচাপে মানুহে মনৰ ভাৱ লিখিত হিচাপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যিবিলাক চিহ্ন মানে এই আখৰবোৰেই একোটা চিহ্ন বুলি কওঁ আমি। তো মানুহে মনৰ ভাৱ লিখিত হিচাপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যিবিলাক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰে তাকেই বৰ্ণ বা আখৰ বোলা হয়। সেই চিহ্নবোৰেই হ'ল আখৰ, যিবিলাক চিহ্নৰে আমি লিখোঁ সেইটোৱেই হ'ল আখৰ, বৰ্ণ বা আখৰ বুলি কোৱা হয়। যেনে চৰেয়, চৰেয়া, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি, এইবোৰ হ'ল একোটা আখৰ, বৰ্ণ বা আখৰ। অৰ্থাৎ ভাষা লিখাৰ কাৰণে এইবোৰ এটা চিহ্ন, এইবোৰ একোটাকৈ চিহ্ন। এতিয়া আমি আম, কলম ইত্যাদি লিখিবলৈ যেতিয়া আম লিখিম, চৰেয়া, যগ্ম দুটা চিহ্ন লগ লগাই কি হৈছে? আম হৈছে। ক যোগ ল যোগ ম, ইয়াত তিনিটা চিহ্ন আছে, এই তিনিটা চিহ্ন লগ লগাই কলম পালোঁ নহয়। গতিকে ইয়াত আমি কি আ আৰু ম এটা চিহ্ন, একোটা চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰি আমি আম পালোঁ বা আম লিখিম। ঠিক সেইদৰে কলম লিখিম, তিনিটা মানে চিহ্ন লগ লগাই মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলোঁ, সেইটোৱেই হ'ল কি বৰ্ণ। তো বৰ্ণ আৰু বা আখৰ কাক বোলে? মানুহে মনৰ ভাৱ লিখিত হিচাপে প্ৰকাশ কৰিবলৈ যিবিলাক চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰে তাকেই বৰ্ণ বা আখৰ বোলা হয়। যেনে চৰেয়, চৰেয়া, হ্ৰস্বই, দীৰ্ঘই, ক, খ, গ, ঘ, ঙ ইত্যাদি। এতিয়া আমি আম, কলম ইত্যাদি লিখিবলৈ আ যোগ ম, চৰেয়া যোগ ম লগ লগাই আম লিখিম, ক যোগ ল ম যোগ ম লগ লগাই কলম লিখিম। এই চিহ্নবোৰ লগ লগাই কি হৈছে? একোটা বৰ্ণ লগ লগাই এটা কি হৈছে? শব্দ পাইছোঁ আমি। তো এইবোৰেই হ'ল একোটা কি? বৰ্ণ বা আখৰ। ঠিক আছে, এই চিহ্নবোৰেই হ'ল একোটা বৰ্ণ বা আখৰ। वर्ण या अक्षर, अर्थात वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मन के भाव को लिखित हिसाब से प्रकाशित करने के लिए, अर्थात लिखित हिसाब से प्रकाशित करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल करता है उन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य अपने मन के भाव को लिखित हिसाब से प्रकाशित करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल करता है उन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ङ इत्यादि, ये सब एक चिन्ह है, एक एक करके चिन्ह है ये सब, अर्थात अक्षर। इन अक्षरों को ही चिन्ह कहा जाता है। अब हम जैसे आम, कलम लिखने के लिए आ जग म, अर्थात आ के साथ म जोड़कर आम और क के साथ ल जोड़कर म जोड़कर एक साथ
जोड़कर क्या करेंगे, कलम बोलेंगे। तो ये चिन्ह होता है, इन चिन्हों को एक साथ जोड़कर हम शब्द लिखते हैं। अर्थात अ और म चिन्ह के जरिए हमने आम समझाया, अर्थात एक शब्द बनाया। मनुष्य अपने मन के भाव को लिखित हिसाब से प्रकाशित करने के लिए जिन चिन्हों का इस्तेमाल करता है उन्हीं चिन्हों को वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, क, ख, ग, घ, ङ इत्यादि। ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, आम, कलम। ये आम और कलम लिखने के लिए हमें आ के साथ म जोड़ना पड़ता है। ठीक उसी तरह क के साथ ल और म जोड़ना पड़ता है। एक साथ जोड़कर कलम, हमें कलम मिला। अर्थात आ और म चिन्हों को जोड़कर हमें आम मिला। तो ये ऐसे ही चिन्ह को हम एक साथ जोड़कर अर्थ अर्थात शब्द लिखते हैं। तो इन्हीं चिन्हों को अक्षर या वर्ण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं चिन्हों को एक साथ अक्षर या वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। এইবার শব্দ কাক বলে। এটা বা তাতকৈ অধিক বর্ণ বা আখর লগাই। এটা বা তাতকৈ অধিক বর্ণ বা আখর লগাই কোনো এটা অর্থ প্রকাশ করা হয়। অর্থ প্রকাশ করাকে শব্দ বলা হয়। ঠিক আছে। যেনে কিতাপ, কিতাপ এটা শব্দ, তিনিটা আখৰ লগ লাগি এটা কি হৈছে, কিতাপ হৈছে। পাহাৰ, নদী, ইয়াত মানুহ ইত্যাদি। কিতাপ, পাহাৰ, নদী, মানুহ ইত্যাদি এইবোৰ একোটা শব্দ। বন্ধুসকল, শব্দ শিকিবলৈ হ'লে মাত্ৰা শিকা বা মাত্ৰা শিকিবই লাগিব। মাত্ৰা অবিহনে আমি শব্দ লিখিব নোৱাৰোঁ। কিছুমান শব্দ আছে মাত্ৰা লাগিবই, মাত্ৰা নহ'লে সেই শব্দবোৰ আমি লিখিব নোৱাৰোঁ। গতিকে মাত্ৰা শিকিবই লাগিব, কাৰণ মাত্ৰা অবিহনে সকলো ধৰণৰ শব্দ লিখিব নোৱাৰি। মাত্ৰা মানে যেনেকুৱা ক হস্যিকাৰে কি, ক তাকাৰে কা, কত দীৰ্ঘিকাৰে কি, কত হস্যকাৰে কু, কত দীৰ্ঘকাৰে কু, কত একাৰে কে, কত ঐকাৰে কৈ ইত্যাদি এইবোৰেই হ'ল একোটা মাত্ৰা। ঠিক আছে বন্ধুসকল, এটা বা তাতকৈ অধিক বৰ্ণ বা আখৰ লগাই কোনো এটা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাকে শব্দ বোলা হয়। শব্দ বুজি পালে, শব্দ মানে কেইটামান আখৰ একেলগে লগাই আমি শব্দ বনাওঁ। যেনেকুৱা কিতাপ, পাহাৰ, নদী, মানুহ এইবোৰ একোটা শব্দ। কেইটামান আখৰ লগ লাগি একোটা শব্দ হৈছে। বন্ধুসকল, শব্দ শিকিবলৈ হ'লে মাত্ৰা শিকিবলৈ লাগিব, কাৰণ মাত্ৰা অবিহনে আমি সকলো ধৰণৰ শব্দ লিখিব নোৱাৰোঁ। মাত্ৰা যেনেকুৱা হস্যিকাৰ, আকাৰ, দীৰ্ঘিকাৰ, হস্যকাৰ, দীৰ্ঘকাৰ, একাৰ, ঐকাৰ এইবিলাক একোটা মাত্ৰা। এই মাত্ৰাবোৰ শিকিবই লাগিব। এই মাত্ৰাবোৰ নিশিকিলে আমি শব্দ লিখিব নোৱাৰিম। কিছুমান শব্দ আছে मात्रा नथका शब्द। तो दोस्तों शब्द, अब हिंदी में शब्द किसे कहते हैं। शब्द जैसे एक या एक से अधिक वर्ण या अक्षरों को एक साथ जोड़कर एक अर्थ प्रकाश करने को ही शब्द कहा जाता है। एक साथ एक से अधिक वर्ण या अक्षर को जोड़कर एक अर्थ प्रकाश करने को ही शब्द कहते हैं। जैसे किताब, पहाड़, नदी, आदमी इत्यादि, ये सब एक एक शब्द है। दोस्तों शब्द सीखने से पहले हमें 12 खड़ी सीखना जरूरी होता है। 12 खड़ी, बिना 12 खड़ी के हम हर शब्द को नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, बिना 12 खड़ी के हम हर शब्द को लिख नहीं सकते। शब्द लिखने के लिए 12 खड़ी जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि 12 खड़ी क्या होता है, का, की, कु, के, कई इत्यादि, ये सब 12 खड़ी होते हैं। अर्थात असमिया में इसको मात्रा कहते हैं, जिसको 12 खड़ी हैं, तो 12 खड़ी को हम असमिया में मात्रा कहते हैं। तो ये 12 खड़ी जरूरी होता है। तो दोस्तों शब्द किसे कहते हैं, एक या
एक से अधिक वर्ण या अक्षरों को जोड़कर एक अर्थ प्रकाश करने को ही शब्द कहते हैं। कई अक्षरों को एक साथ जोड़कर अर्थ प्रकाश होता है, कोई अर्थ बनता है, तो इसी को शब्द कहा जाता है। जैसे किताब, पहाड़, नदी, आदमी, ये सब एक एक शब्द है। दोस्तों, शब्द सीखने से पहले हमें बाराखड़ी सीखना जरूरी होता है, क्योंकि बिना बाराखड़ी के हम शब्द नहीं लिख पाएंगे। कुछ ऐसे शब्द हैं जो बाराखड़ी की ज़रूरत पड़ता ही है। का, की, के, कु, ये सब लगा के हमें बाराखड़ी लिखना पड़ता है। बाराखड़ी जैसे का, की, कु, के, कई इत्यादि, ये सब है बाराखड़ी। तो दोस्तों, समझ गए कि शब्द किसे कहते हैं और शब्द सीखने के लिए बाराखड़ी जरूरी कैसे होता है। বন্ধুসকল, এবার বাক্য। বাক্য কাক বোলে? বাক্য কাক বোলে? কেইটামান শব্দ, যেনেকুৱা আমি কেইটামান আখৰ লগ লগাই শব্দ হৈছিল, ঠিক সেইদৰে কেইটামান শব্দ লগ লগাই বাক্য হয়। কেইটামান শব্দ একেলগে লগ লগাই কোনো এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাকে বা বাক্য বোলা হয়। ঠিক আছে, কেইটামান শব্দ একেলগে লগ লগাই কোনো এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাকে বাক্য বোলা হয়। এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ হয়, সেইটোৱেই হ'ল এটা বাক্য। যেনে তুমি কি কৰি আছা? তুমি কি কৰি আছা, এইটো এটা চেণ্টেন্স, অৰ্থাৎ এইটো এটা বাক্য। ইংৰাজীত চেণ্টেন্স বুলি কয়, অসমীয়াত বাক্য। তো এই তুমি কি কৰি আছা উক্ত বাক্যটোত তুমি এটা শব্দ, কি এটা শব্দ, কৰি এটা শব্দ, আশা এটা শব্দ, এনেকৈ এই চাৰিটা শব্দ লগ লগাই এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ হৈছে। অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ হোৱাকে বাক্য বোলা হয় নহয়। তো এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ হৈছে, অৰ্থাৎ তুমি কি কৰি আছা, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ। গতিকে এইটো এটা বাক্য। ঠিক আছে বন্ধুসকল, বাক্য কাক বোলে? কেইটামান শব্দ একেলগে লগ লগাই কোনো এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাকে বাক্য বোলা হয়। যেনে তুমি কি কৰি আছা, তুমি কি কৰি আছা এইটো এটা বাক্য হ'ল নহয়। উক্ত বাক্যটোত তুমি এটা শব্দ, কি এটা শব্দ, কৰি আছা এটা শব্দ, কৰি থকাটো এটা শব্দ, আছাটো এটা শব্দ, এইবিলাক এই চাৰিটা শব্দ লগ লগাই এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ হৈছে নহয়। এই চাৰিটা শব্দ লগ লগাই এটা সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ হৈছে, তুমি কি কৰি আছা। তো এইটো এটা বাক্য। তুমি কি কৰি আছা, এইটো এটা বাক্য। গতিকে এইটো এটা বাক্য। কিয় একটা বাক্য? কাৰণ কেইটামান শব্দ লগ লগাই এটা সম্পূৰ্ণ কথা হৈছে, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ বাক্য হৈছে, অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তাৰ কাৰণে এইটো এটা কি? বাক্য। तो दोस्तों, अब मैं हिंदी में वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य एक साथ कई शब्दों को जोड़कर, एक साथ कई शब्दों को जोड़कर एक संपूर्ण अर्थ प्रकाश करने को ही वाक्य कहते हैं। तो दोस्तों, वाक्य किसे कहते हैं? एक साथ कई शब्दों को जोड़कर एक संपूर्ण अर्थ प्रकाश करने को ही वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो एक वाक्य है। इसमें तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, उक्त वाक्य में तुम एक शब्द है, क्या एक शब्द है, कर एक शब्द है, रहे एक शब्द है एक शब्द है, तो हो एक शब्द है। तो ऐसे 5 शब्द एक साथ जोड़कर एक वाक्य बना है। तुम क्या कर रहे हो, तुम एक शब्द, क्या एक शब्द, कर रहे एक शब्द, रहे एक शब्द, हो एक शब्द। तो ऐसे 5 शब्दों को एक साथ जोड़कर एक वाक्य बना है। एक साथ 5 शब्दों को जोड़कर एक संपूर्ण अर्थ बना है, अर्थात एक बात बना है, तो उसी को वाक्य कहा जाता है। इसलिए यह एक वाक्य है। तो दोस्तों, वाक्य किसे कहते हैं? एक साथ कई शब्दों को जोड़कर एक संपूर्ण अर्थ प्रकाश करने को ही वाक्य कहते हैं। एक संपूर्ण अर्थ होता है कई शब्दों को जोड़कर। जैसे तुम क्या कर रहे हो, एक शब्द, जैसे एक वाक्य बन गया कई शब्दों को जोड़कर 5 शब्दों को। उक्त वाक्य में तुम एक शब्द है, क्या एक शब्द है, कर एक शब्द है, रहे एक शब्द है और हो एक शब्द है। ऐसे 5 शब्दों को एक साथ जोड़कर एक संपूर्ण अर्थ प्रकाश हुआ है, इसीलिए यह एक वाक्य है। ठीक है दोस्तों, समझ गए वाक्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा
आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट करते रहना। लाइक कमेंट करोगे तो मेरा उत्साह जगेगा और मैं आप लोगों के लिए आगे और भी वीडियो बना पाऊँगा। थैंक्स फॉर watching. Thanks for 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 watching.